Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is part 2 of the scientist B examination preparation. In the first part I have covered till dengue. Like we have started from the priority wise categories of different communicable diseases, group A, group B and group C. So basically let's revise it quickly. In group A we are having the highest priority diseases as mentioned in the lines, and in group 2 we are having intermediate priority diseases, and in C there are some important health condition which are under surveillance. So ये तीन कैटेगरीज में हमने स्टार्ट किया था. वी हैव कवर्ड कॉलेरा, प्लेग, येलो फीवर, नोवेल इन्फ्लुएंजा, CCHF, डेंगी. यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया है. If you have not yet watched, I will provide the link in the I button or else in the description box. You can check it out. And without further delay, don't forget to subscribe because this motivates me to make more and more in-depth video. So we will start from this pneumococcal disease and we will finish this today. Then we will also solve some questions related to the previous topic. So साथ साथ में ही पढ़ते जाओ, जितना नोट्स बनाना है, जितना रिवाइज करना है. Don't like be consistent and don't procrastinate. So let's start it. Group A, immediate and highest priority diseases are included. B, intermediate. C includes important health condition which are under surveillance. So in this group A we are having bacterial invasive diseases. The first one is pneumococcal invasive disease. So before starting this, the first tip which I would like to give you is, tip 1 is make crisp notes as much as possible, because without making a notes, as per my own opinion, you will not be able to recall it over a longer period of time. एक बार बुक से पढ़ने के बाद वो उस टाइम तक याद रहती हैं चीज़ें, but after a few days you will start forgetting it. So don't write a paragraph or a whole 20 to 30 page for a topic. Instead what you can do, you can make flowcharts, you can make single line notes, crisp notes. For example, this pneumococcal invasive disease is caused by the bacteria Streptococcus pneumoniae. What is the mode of transmission of this disease? Droplets released by the infected individual. यानी कि जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, वो क्या कर सकते हैं, वो सामने वाले को भी that are very very contagious, they can also make the other person feel sick. So mode of transmission क्या हो गया, ड्रॉपलेट हो गया. मैंने कैसे क्रिस्प नोट्स बनाए, यू हैव टू फॉलो द सेम वे, एंड आप इसके अकॉर्डिंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं. बट माई पर्सनल टिप विल बी कि जितना क्रिस्प नोट्स बनाएंगे उतना कम टाइम देना पड़ेगा फॉर रिविजन, and the more you will revise, the more marks you will get in your examination. So what are the clinical outcomes? Pneumonia, meningitis and septicemia. So this pneumococcal invasive disease is a spectrum of illness, like it includes so many diseases, like it also include meningitis, it also include the septicemia and pneumonia तो है ही. Now it is very very invasive because pneumococcal meningitis यानी कि bacterial meningitis जो है, you can see here meningitis, the inflammation of your meninges यानी कि brain का जो covering है, so it is very very fatal. because अगर ये वाला जो केस देखा गया है, यानी इसका जो CFR है, केस फर्टिलिटी रेट, दैट इज़ वेरी वेरी हाई, यानी कि ये डिजीज़ होने पर मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. अब इसके अलावा अगर इसके हम लोग थोड़े से एपिडेमियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी. एज ए नेम सजेस्ट, यहाँ से आप याद रखते हैं स्पीशीज़ नेम से, इट कॉज द इन्वेसिव न्यूमोनोकोकल डिजीज़. सो this includes high fever, even in some cases कोमा. यानी जिन भी पेशेंट्स में ये डिजीज़ देखी गई है, इन एक्सट्रीम केसेस बहुत हाई फीवर आता है, एंड इफ़ यू आर हैविंग हाई फीवर सिंस सो मेनी डेज, यू विल अल्टीमेटली फील लेथार्जिक.
you will not have energy to do anything, and eventually the patient also go in coma. And then जो meningitis है उसके भी सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम यंग इन्फेंट्स की बात करें तो उनमें भी ये डिजीज़ होने के उतने ही चांसेस हैं। एंड इसके अलावा जो एल्डरली हैं वो बहुत हाई रिस्क पे हैं। सो अगर हम लोग निमोनोकोकल इन्फेक्शंस की बात करें, सो दीज आर कॉमन ड्यूरिंग विंटर। विंटर में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और विंटर में इसलिए भी कॉमन है क्योंकि विंटर में रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर कम रहता है। एंड जो अगर हम लोग इन्फेक्शंस देखें, जो एयरबॉर्न डिजीजेस हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो पैथोजेंस हमारे जो एयर मीडिएटेड हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इसका भी जो वल्नरेबिलिटी है इट इज़ हाई इन विंटर। अगर हम लोग बात करें इंक्यूबेशन की, सो इट इज़ कंपैरेटिवली शॉर्टर, लाइक 1 to 4 days इज सफिशिएंट। एंड इसके हम लोग कम्युनिकेबिलिटी की बात करें, सो इट इज़ कम्युनिकेबल, लाइक अगर एक पेशेंट को हुआ है एंड यू आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी तो ड्रॉपलेट से ये सामने वाले पर्सन को भी हो सकता है। ट्रांसमिशन कैन अकर एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनिज्म अपीयर इन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। इट मीन्स अगर आपके रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में अभी तक वो इन्फेक्शन है, अभी तक वो पॉजिटिव एजेंट है, देन देर आर चांसेस कि वो बैक्टीरिया किसी सामने वाले पर्सन को भी हो सकता है। नाउ इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये डिज़ीज़ का जो प्रिवेंशन है वो वैक्सीनेशन के थ्रू हो सकता है। यानी अगर हम लोग किसी भी डिजीज़ की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स जो वैक्सीन है वो एक ऑल्टरनेटिव है, बट इट डिपेंड्स कि वो डिजीज़ का वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है। नाउ व्हाट इज़ पीसीवी? PCV is pneumococcal conjugate vaccine. Pneumococcal conjugate vaccine, which protect against the serious infection caused by the Streptococcus pneumoniae bacteria. यानी इसके अगेंस्ट में जो सीरियस इन्फेक्शन होता है, जो इन्वेसिव इन्फेक्शन होता है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है ये। यानी कि आप किन 3 चीज़ों से ये प्रोटेक्शन देगा? दिस क्लिनिकल फीचर, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस एंड सेप्टिसेमिया। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये न्यूमोनोकोकल इन्वेसिव डिजीज़ है तो इसके से हमें किन किन चीज़ों से हमें मिलेगा प्रोटेक्शन? PCV से। PCV इज़ फॉर न्यूमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। सो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स एज वेल एज यंग चिल्ड्रन, एंड एडल्ट्स के लिए भी ये रिकमेंडेड है। Some risk factors are already always associated with the vaccine. So इसके यूजुअली 4 डोजेज होते हैं एंड अलग अलग टाइम पीरियड पे होते हैं। तो PCV वैक्सीन इज़ फॉर न्यूमोनोकोकल इन्वेसिव डिजीज़। अब उसके अलावा जो हमें कवर करना है इट इज़ दिस HIV डिजीज़। सो HIV डिजीज़ की अगर हम लोग बात करें, सो why HIV? As per the causative agent name, Haemophilus influenza type B. So this Haemophilus influenza type B, which is abbreviated as HIV, is a serious bacterial infection primarily attacking children under 5. यानी less than 5 years के जो बच्चे हैं उनमें ये देखने को मिलता है, which causes severe disease like meningitis, pneumonia and epiglottis. यहाँ पे दिख रहा है meningitis, pneumonia and epiglottitis, ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये एक साथ इतने सारे जगह पे, इतने सारे टारगेट्स पे अटैक कर सकता है ये बैक्टीरिया, विच इज़ केपेबल इनफ। सो दिस इज़ अ सेरोटाइप ऑफ दिस बी मेनिंजाइटिस। यानी कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है चिल्ड्रंस में, यूजुअली कितने से कितने रहते हैं? 2 months से 5 years के बच्चों में ये डिजीज़ देखा गया है। सो जो दूसरे सेरोटाइप्स हैं वो रेयरली मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, बट दिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस HIV। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो दिख रहा है मेनिंजाइटिस, निमोनिया, एपिग्लोटाइटिस, इसके अलावा भी सेलुलाइटिस होता है, बोन्स एंड जॉइंट्स में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सो ये सारी चीज़ें भी इस बैक्टीरिया के थ्रू एसोसिएटेड है, मतलब इस बैक्टीरिया के मल्टीपल टारगेट्स हैं। दिस बैक्टीरिया इज़ वेरी वेरी
इन्फेक्टिव। अब इसके रिजर्वॉयर यानी हम देख सकते हैं कि किस में मिल रहा है डिजीज़, ह्यूमंस में मिल रहा है। ट्रांसमिशन इज़ बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, यानी ड्रॉपलेट्स या डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, थ्रोट। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ पे भी बात होती है रेस्पिरेटरी, हमारा इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अगर मान के चलो कि वो डिजीज़ किसी भी पर्सन को हुआ है एंड यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन है एंड ये जो पर्सन है वो डिजीज़ होते काफ़ी टाइम हो गया, यानी इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोसीड हो चुका है, प्रोग्रेसिव है। सो उसके रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज में, नेज़ल डिस्चार्ज में, टॉकिंग के वक्त इवन ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं। सो वो जो सेकेंड पर्सन है उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो डायरेक्ट टच से भी, क्योंकि वो पर्सन के बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर तो वो बैक्टीरिया होगा ही, सो यू कैन बिकम इन्फेक्टेड when you will come in contact with the normal person. So this is the HIV disease and इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है इम्यूनाइजेशन की, यानी कि अगर हम लोग बच्चों को इम्यूनाइज रखें, HIV वैक्सीन लगाए, क्योंकि यू कैन सी इट इज़ हाउ डेंजरस इट इज़, इट हैज़ मल्टीपल टारगेट्स इस बैक्टीरिया के। सो द ओनली प्रिवेंशन इज बाय इम्यूनाइजेशन इन चाइल्डहुड। नाउ नेक्स्ट, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन। अभी हम लोग बहुत सारा जो पढ़ रहे हैं वो मेनिंजाइटिस ये सब से रिलेटेड है। सो दिस मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय नीसेरिया मेनिंजाइटिस। सो अगेन अगर हम लोग बात करें ट्रांसमिशन की, सो इट इज थ्रू ड्रॉपलेट। नाउ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस एक्यूट, जितने भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ उसे चाहो तो लिख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट डोंट फॉरगेट टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक और wherever you want you can write it. Pyogenic meningitis. So see, this bacteria, this Neisseria meningitidis is a very common cause of this disease, acute bacterial pyogenic meningitis. So it has a very shorter incubation period and again it has a potential to cause what? Outbreak. पैंडेमिक सिचुएशन लाने का पोटेंशियल इस पैथोजन में है। अगर हम लोग अगेन एपिडेमियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन करें, सो इट इज़ लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ह्यूमंस में ये डिजीज़ देखने को मिलती है। एंड अगर ट्रांसमिशन की बात करें, सो अगेन ट्रांसमिशन इज़ डायरेक्ट थ्रू ड्रॉपलेट्स। अगर इन्फेक्टेड पर्सन से ड्रॉपलेट रिलीज हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नोज डिस्चार्ज, थ्रोट डिस्चार्ज, इट कैन डायरेक्टली इन्फेक्ट दी हेल्दी पर्सन टू। और अगर एसिम्टोमेटिक कोलोनाइजेशन है किसी पर्सन के या किसी पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सो इट इज़ फ्रीक्वेंट एंड इट विल प्रोवाइड द फोकस फ्रॉम विच द ऑर्गेनिज्म स्प्रेड्स। अब अगर हम लोग बात करें कम्युनिकेबिलिटी की, तो वो तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। नाउ susceptibility to this clinical disease is very low and decreases with age, यानी कि it will induce a high ratio of the carrier to cases. अब अगर हम लोग बात करें इस डिजीज़ की, सो ये जो डिजीज़ है उसके क्लिनिकल आउटकम्स की, इट हैज़ मेनिंजाइटिस एंड परप्यूरा। अब जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंग्स ऑफ द ब्रेन, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन सा बैक्टीरिया कराता है? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। अब ये कम्युनिकेबल है, इंक्यूबेशन कंपैरेटिवली शॉर्टर है, 10 डेज, 2 to 10 डेज है। प्रिवेंशन क्या है? कीमोप्रोफाइलेक्सिस प्लस वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। बट इसका जो मेन आउटकम है, रिस्क ग्रुप्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिनका जो पहले से ही कोई डिजीज़ हिस्ट्री हो। देखो, कभी भी डिजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, डिजीज़, डिस्कम्फर्ट और एनी काइंड ऑफ सिंड्रोम, सो वो जनरली उन्हीं में होता है, लाइक होने के लिए सब में होता है, बट किसके लिए ज़्यादा फेटल है। फर्टिलिटी की बात करें, केस फर्टिलिटी रेशियो की जब हम बात करते हैं, सो फर्टिलिटी उनमें ज़्यादा होती है जिनमें ऑलरेडी कोई डिजीज़ हिस्ट्री है। सो अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे रहा है कि हु आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, सो यू कैन से कि जो बहुत ज़्यादा एल्डर हैं,
like 60 or 65 plus हैं, they will be most vulnerable because their immunity gradually decreases over time. So वो बहुत ज़्यादा क्या है, vulnerable हैं. एंड इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें, सो CSF से इसका इन्वेस्टिगेशन होता है. सो CSF से माइक्रोस्कोपी एंड देन एंटीजन का स्टडी या फिर कल्चर, AST, PCR, ये सारी चीज़ें हमें CSF के सैंपल से, हम CSF स्पेसिमेन से कर सकते हैं. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो है ट्यूबरक्यूलोसिस. So tuberculosis, which is a chronic and zoonotic disease. Tuberculosis is caused by again a bacterial disease, Mycobacterium tuberculosis. अब ट्रांसमिशन जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पे भी लंग्स या रेस्पिरेटरी पैसेज इन्वॉल्व हो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देन यू कैन से कि ट्रांसमिशन जो है वो एयरबॉर्न हो सकता है. ईजिली हमारे बोलते वक्त या फिर खांसते वक्त, कफिंग के वक्त, स्नीजिंग के वक्त एयर ड्रॉपलेट्स इजीली रिलीज हो सकते हैं. नाउ इंक्यूबेशन इज़ नॉट शॉर्टर, यानी अगर हम लोग बात करें TB की, ट्यूबरक्यूलोसिस की, सो इंक्यूबेशन इज़ like 2 to 10 weeks from the primary lesions. You can see weeks to years लग जाते हैं to develop this disease, यानी वीक्स टू मंथ्स लगेंगे या फिर ईयर लग जाएंगे फॉर द डिजीज, डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर एंड एजेंट होस्ट रिलेशन. यानी कि कितना आपका इम्यूनिटी है, क्या आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उसके अकॉर्डिंगली इट डिपेंड्स कि आपको जो सिम्टम्स हैं वो वीक्स टू मंथ्स और इवन साल भी लग सकते हैं वो सिम्टम्स दिखने में. नाउ ये जो इसका ससेप्टेबिलिटी है, इट इज़ यूनिवर्सल, किसी को भी हो सकता है एंड जनरली इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर्स, राइट. अब इसके ट्रांसमिशन तो मैंने बता दिया है, एयरबॉर्न है, ह्यूमंस को होता है, रेयरली किसी और प्राइमेट्स में देखा गया है. अब इसका जो वैक्सीनेशन है, डायग्नोसिस है, स्पूटम के थ्रू होता है, स्पूटम स्मेयर के थ्रू. BCG वैक्सीन इसका आता है, बैसिलस कालमेट-गोरिन वैक्सीन, इसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है. यू कैन सी कैसे यहाँ पे ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रहे हैं. ये जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, अब इसके रेस्पिरेटरी पैसेज में ये बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा मैच्योर स्टेज में होगा. नाउ while speaking, while sneezing and coughing, this will release the air droplets. जो एयर ड्रॉपलेट्स है वो डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं, इस हेल्दी इंडिविजुअल में. सो थ्रू दिस वे दिस अदर पर्सन विच इज़ हेल्दी कैन बी इन्फेक्टेड टू. तो ये सारा कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको ध्यान रखना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज सेम, यानी कैसे एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है डिजीज़ या कम्युनिकेट हो रहा है, कम्युनिकेबल, इसीलिए तो नाम हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. नाउ मलेरिया. So malaria is again caused by a plasmodium and ये जनरली 4 स्पीशीज से होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपोरम, वाइवैक्स, ओवेल. लेकिन जो मेनली ज़्यादा वल्नरेबल है या सिवियरिटी है वो इस फाल्सीपेरम से दिखता है. अगेन वेक्टर बेस्ड है, अगर आप मस्कीटोज को ही प्रिवेंट कर देंगे देन हु विल कैरी दी कॉजेटिव एजेंट. सो इसलिए what people suggest to kill the vector ही नहीं रहेगा तो हमारा मेन जो पॉजिटिव एजेंट है वो नहीं आएगा. तो मलेरिया इज अगेन अ मस्कीटो बॉर्न इलनेस. डेंगू इज व्हाट, अ मस्कीटो बॉर्न इलनेस. तो जितने भी मस्कीटो बॉर्न इलनेस है उसके लिए जड़ को ख़त्म करो, रूट ही नहीं रहेगा तो प्लांट कैसे बढ़ेगा, राइट. तो वैसे ही वेक्टर नहीं रहेगा तो पॉजिटिव एजेंट कैसे ट्रांसफ़र होगा हमारे होस्ट, हेल्दी होस्ट में. सो you can see the malaria life cycle. A bite from infected mosquito transmit malaria parasite, that is प्लाज्मोडियम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया सलाइवरी ग्लैंड से मस्कीटो के. ये पैरासाइट कहाँ ट्रैवल करता है, लीवर में ट्रैवल करता है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, नरिशमेंट लेता है, एंड देन उसके बाद आफ्टर हैविंग सम डेज टू फ्यू वीक्स ये कहाँ ट्रैवल करता है, ये सीधे RBC पे अटैक करता है. एंड आफ्टर अटैकिंग द RBC यू कैन सी RBC को रप्चर करता है. बाइकनकेव शेप के जो RBC होते हैं इट इज़ रप्चर्ड एंड देन हीमोजॉइन इज रिलीज्ड, अ पिगमेंट नोन एज a pigment which is responsible for the frequent chilling and fever cycle. So वो रिलीज होता है एंड देन अगेन उस टाइम पे कोई मस्कीटो
हमें बाइट करता है तो वो क्या लेता है, वो फिर से उस पॉजिटिव एजेंट को, प्लाज्मोडियम को सक करता है एंड देन इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अब प्रिवेंशन क्या दिया है यहाँ पे, साफ साफ लिखा है बेड नेट्स, यानी या फिर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जो मस्कीटो को प्रिवेंट करे, वैसा ट्रीटमेंट करने से हम लोग इससे बच सकते हैं। अब अगेन इसका ससेप्टेबिलिटी, यानी कौन ज़्यादा ससेप्टेबल है, कौन ज़्यादा वल्नरेबल है, सो इट इज़ यूनिवर्सल, यानी किसी को भी हो सकता है। बट अगर हम लोग बात करें ट्रांसमिशन की, सो मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो। फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो के बाइट से ये डिजीज़ होती है। एंड देन अदर मोड क्या है, एक्सीडेंटल ट्रांसमिशन वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन और निडल स्टिक इंजरी एंड मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन, ये भी एक मोड है इन प्रेग्नेंट लेडीज़। इसका टाइम कितना रहता है, फैल्सीपेरम का टाइम रहता है 9 to 14 डेज एंड वाइवेक्स का टाइम रहता है 12 to 17 days. So this is the like यहाँ पे हम लोग इंक्यूबेशन को जनरलाइज कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ 7 to 30 days एंड इसका एक ही प्रिवेंशन है कि प्रिवेंट द वेक्टर। नाउ अनदर वन इज रेबीज। सो अगर हम लोग रेबीज की बात करें तो रेबीज इज एन एक्यूट हाईली फेटल वायरल इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये वायरल डिजीज़ है। नाउ इट इज़ वेरी वेरी फेटल डिजीज़, ये एक अक्यूट है एंड नॉट जस्ट ओनली फेटल, इंस्टेड इट इज़ अ हाईली फेटल वायरल इन्फेक्शन ऑफ दी व्हाट, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये एक बहुत ज़्यादा हाईली फेटल वायरल इन्फेक्शन है। इट इज़ प्राइमरीली अ ज़ूनोटिक डिजीज़, यानी डॉग्स बॉर्न डिजीज़ है, ये डॉग्स के काटने से होता है। सो इट इज़ अगेन अ ज़ूनोटिक डिजीज़ एंड ज़ूनोटिक डिजीज़ में भी सिर्फ डॉग्स के, हम यहाँ पे पढ़ते हैं डॉग्स के अलावा और कौन कौन से कार्निवोरस एनिमल्स हो सकते हैं, कैट्स, वुल्फ्स, फॉक्सेस एंड जैकल्स के काटने से भी होता है। सो बेसिकली इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस मेनली बाय द बाइट ऑफ अ रैबिड एनिमल और इसका कोई क्योर नहीं है, नो क्योर, देयर इज़ नो क्योर। द इन्फेक्शन पूल इज मेंटेन्ड बाय द presence of some of the available vaccine, that is prevention है PEP, vaccine plus RIG. Now what is this term? So PEP क्या है, post exposure prophylaxis, यानी अगर आपको किसी डॉग ने बाइट किया है then you will be immediately sent to PEP, that is post exposure prophylaxis after having bitten by the rabies dogs. फॉर अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, सो दे इंक्लूड इमीडिएट थरो वुंड क्लीनिंग सोप वाटर से एंड आपके वुंड को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है एंड देन दे विल एडमिनिस्टर यू अ ह्यूमन रेबीज इम्यून ग्लोब्यूलिन HRIG फॉर इमीडिएट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन एंड 4 days रेबीज वैक्सीन सीरीज, यानी आपको इमीडिएट एंटीबॉडीज दी जाती हैं ताकि आपको जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल किया जा सके, विच इज़ फॉलोड बाय अगेन अ 4 dose रेबीज वैक्सीन सीरीज लाइक डे 0 पे, 3 पे, 7 पे, 14 पे to prevent this fatal disease. Now this RIG is a critical for category 3 exposures providing instant passive immunity. Passive immunity मतलब वो आपको naturally नहीं है, it is through vaccination. सो आपको लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी प्रोडक्शन देंगे एंड 100% फेटल वंस सिम्टोमेटिक, जैसा मैंने बताया इट इज़ वेरी वेरी हाईली फेटल। सो क्लिनिकल क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, वाटर फोबिया होता है, 1 to 3 months लगते हैं, एनिमल बाइट से होता है। रिजर्वॉयर क्या है, डॉग्स में मेनली देखा जाता है। सो इसमें इसका जो इंक्यूबेशन है विच इज़ वेरी वेरी वेरिएबल, बहुत ज़्यादा वैरी करता है, 3 to 8 weeks होता है, बट किसी किसी में सालों लग जाते हैं, कुछ दिन से सालों में सिम्टम्स देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रेबीज। नाउ यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट A। सॉरी, ये पार्ट A हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। रेबीज सिंड्रोम्स को हम लोग कल कवर करेंगे, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।